Hello everyone, welcome to Nidhi's Data Science Journey. Today I'm going to make a dashboard. One thing I have noticed is that when I created dashboards, I tend to focus on visuals, designs rather than insights. However, the main purpose of our dashboard is to uncover insights, not just to make it good, look good. I have I have copied a lot, many of dashboards like this one and wait, and this one also. I have copied many well designed dashboards from others, but that doesn't haven't really improved my skill or deepening my understanding of BI tools. So starting today, I will try to approach different things to improve my understanding. First, I will open BI tool. Okay, so just load it. Just get the data where our data is stored. Okay, I just take a blank sheet, get my data, get data. My data is an Excel workbook, so I select it and just select the data. Select the sheet which you want to load in Power BI. Hmm, So this is my sheet, and just check the data types and just transform the data according to your data set. My data is almost cleaned. So first thing, I just apply and close. I just don't need to. Okay, transform the data. Wait a moment. I just load the data. Okay, data is loading. Okay, data is already loaded. Okay, I'll come in table view. First, I will think from the user perspective. What kind of a questions would someone want to ask from this data set? That is a most important thing. So first we will go and understand the data. And in my videos, I'm trying to speak English, although I'm normally speaking Hindi, because as a data science student and as a data scientist, it is important thing to make them understand our thoughts and our perspectives. So I'll try to speak English when I think that, or make the video and make the other understand. So I'll speak Hindi, but in some phases I'll try to speak English so I can improve my understanding, my English speaking skills. So let's start. नॉर्मली मैं भी हिंदी ही बोलती हूँ. ओके, सो क्या डेटा आइटम फैट कंटेंट. आइटम फैट कंटेंट, ओके, पहले हम डेटा समझेंगे डेटा में है क्या. आइटम फैट कंटेंट, ओके. देन है आइटम आइडेंटिफायर. कोई भी आइटम है उसका फैट कंटेंट है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है. और कुछ भी है, कितना फैट है, लो फैट है, रेगुलर है, ठीक है. आइटम आइडेंटिफायर, क्या आइडेंटिफाई होता है. आइटम टाइप, किस टाइप का आइटम है. हाउस होल्ड है, ब्रेड है, डेयरी प्रोडक्ट है, फ्रोजन फूड है. एंड आउटलेट एस्टेब्लिशर, आउटलेट किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था. आउटलेट आइडेंटिफायर, ओके. आउटलेट लोकेशन, आउटलेट की लोकेशन क्या, अगर मान लो मेरे पास मेरी कोई ब्लिंकिट का है, तो मान लो कोई स्टोर है, ठीक है.
रैंडम, और वो कहाँ पे है, Tier 1 Tier 2, उसका साइज क्या है, आउटलेट टाइप क्या है, सुपरमार्केट है या और कुछ है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है आइटम विजिबिलिटी कितनी है, कितना दिखाई दे रहा है। लाइक कुछ चीजें होती है हम स्टोर पे जाते हैं तो फ्रंट पे रखी होती है, लाइक चॉकलेट्स वगैरह, ठीक है, और कुछ चीजें वो पीछे से रखी होती हैं, हमें ढूंढनी पड़ती है कहाँ है, ठीक है। उसके बाद आइटम का वेट क्या है, हर आइटम का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। आई थिंक इसमें इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें ये भी ठीक कर लेना था जो ब्लैंक है, ठीक है। सो आइटम वेट क्या है और सेल्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की सेल क्या है, कितने की हो रही है, रेटिंग क्या है, ठीक है, ये हमारा डेटा था। अभी हम फोकस इस चीज पे नहीं कर रहे हैं कि हमें डैशबोर्ड अच्छा बनाना, गुड लुकिंग हो, दिखने में कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट मैं हमेशा से ये गलती करती आई हूँ, डैशबोर्ड दूसरों के कॉपी कर रखे हैं, मेरे पास बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं, महारानी को मैंने 10 डैशबोर्ड बना रखे हैं, बट मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो नहीं पता। अभी हम फोकस करते हैं इनसाइट पे। जब हमें कोई इंटरव्यू में डेटा सेट देता है तो उसका फोकस ये नहीं होता है कि हमने कितना अच्छा लुक वाइज कितना अच्छा डैशबोर्ड बनाया, वो हमसे इनसाइट्स पूछते हैं और हमें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट इट, देखते हैं कि काम करता है ये या नहीं, बट ट्राई तो करना पड़ेगा ना डिफरेंट थिंग्स। Let's start it. This is my data set. So let's start it. What can we? Okay. First, I'll type what kind of a question a person would ask if from this data set. Okay. So I'll write it on another sheet. ठीक है, लाइक हमने एक डेटा सेट लिया, जैसे मेरा ये डेटा सेट है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट वो पूछ सकता है कि सेल्स कितनी है तुम्हारी। सबसे पहले अगर मेरे पास कुछ है तो सेल्स है ना इम्पोर्टेंट, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल ही सेल्स है। टारगेट वेरिएबल्स मतलब न्यूमेरिकल जो सबको इफेक्ट करता है। ओवरऑल मुझे इन सब का सिस्टम क्या है जानना, क्या है इससे कि मेरी सेल्स कितनी हुई, कि हमारा रेवेन्यू कितना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टारगेट वेरिएबल है सेल्स। तो मैं क्या करूंगी, पहले क्वेश्चंस लिखूंगी, क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकता है इसमें से। अगर कोई भी डेटा सेट को देखेगा, अगर किसी कंपनी का है तो क्या क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेरा फोकस किस पे चल रहा है कि कैसा डैशबोर्ड बनाऊं। मुझे खुद को इनसाइट समझ में नहीं आ रहे तो मैं किसी और को क्या समझाऊंगी, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज टोटल सेल, टोटल सेल है क्या। सो सेकंड क्या बन सकता है, ठीक है, लाइक कुछ भी बना सकते हैं, वेट, ठीक है। सो कितनी आइटम्स है, कार्ड्स के लिए सोच रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल कितनी आइटम्स है। सो सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोटल आइटम्स, ठीक है। थर्ड वन वुड बी थर्ड वन क्या हो सकता है, वुड बी सेल्स बाय आइटम, एवरेज रेटिंग कितनी है, ठीक है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सेल्स बाय आइटम, ठीक है, एंड वुड बी क्या हो सकती है, एवरेज रेटिंग, एवरेज रेटिंग कितनी बन रही है मेरी, ठीक है। ये भी रेटिंग दे रखी है ना, अभी तो देखा था मैंने ये ना, देखो वैसे भी दे रखा है, जो चीज न्यूमेरिकल है ना वो मैं ट्राई करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, जो जो न्यूमेरिकल है ना उनको कोशिश कर रही हूँ कि कार्ड्स में डालूं, इसलिए मैंने पहले कार्ड्स वाले आइटम लिख लिए ये रहे। लाइक न्यूमेरिकल सेल्स न्यूमेरिकल में है तो मैंने सेल्स वाला लिख लिया। फिर मैंने नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर सकते हैं, ये भी काउंटेबल चीज है तो मैंने इसको भी उसमें डाल दिया, ठीक है। तो एवरेज रेटिंग डाल दी सम की, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, व्हाट वुड बी नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, अभी तो ये कार्ड वाले बनेगा और कुछ सोचते हैं।
सो लाइक डेटा को देखा, हाँ तो मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ फैट वाली, फैट में क्या क्या है। रुको पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। सो मैं पूछ रही हूँ, ओके व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट एंड रेगुलर फैट कंटेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, हमने ट्रांसफॉर्म करना भी रहेगा। ठीक है, सो क्या है, ओके विच आउटलेट टाइप परफॉर्म बेटर, कौन सा आउटलेट टाइप बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, चार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। ओके टीयर 1 वर्सेस टीयर 2, हु विंस। मतलब कौन जीत रहा है, हु विन, कोई तो सबसे आगे होगा ना। ठीक है, ओके अब मैं देखना चाहती हूँ विजिबिलिटी सेल्स पे क्या इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, सो माय 7 क्वेश्चंस वुड बी विजिबिलिटी वर्सेस सेल्स, विजिबिलिटी का सेल्स पे क्या इफेक्ट है, वेट का भी, वेट का सेल्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड हमेशा एक एक चार्ट हमेशा ट्रेंड का बनेगा। अगर मेरे पास डेट दी हुई है या ईयर गिवन है तो मैं ट्राई करूंगी उसका ट्रेंड चार्ट बनाऊं। पता है ना हमें ट्रेंड चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट या लाइन चार्ट। सो एक मैं वो जरूर बनाऊंगी और इसमें मैं लिख देती हूँ कि वो ट्रेंड चार्ट है। अभी मुझे क्लियर है कि ये ट्रेंड चार्ट है, सो मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, क्या हो सकता है, हाउ सेल्स चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब मैं करूंगी, ये तो मेरे हो गए हैं। ठीक है ऑलमोस्ट, सो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मैं प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के इनसाइट्स क्या निकाली हमने। ठीक है, क्या इनसाइड है प्रोडक्ट, लाइक कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, या हाई सेल किस प्रोडक्ट की है, डेयरी प्रोडक्ट्स की है, या कौन से आइटम्स हैं जो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। सो हम सोचेंगे अब 10th क्वेश्चन, which product have high sales। ओके और सबसे लो विजिबिलिटी किसकी है, लो विजिबिलिटी किसकी है, और डस फैट कंटेंट इफेक्ट, ये हमने वैसे शायद पहले लिख लिया है ना, चलो लिख लेते हैं, डस फैट कंटेंट इफेक्ट सेल्स, फैट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स पे। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बनाया, आज के इतने काफी हैं, 12 क्वेश्चंस इज sufficient to make a dashboard, so let's start it। ओके हम इसी के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या बनता है, देखते हैं जो भी बनेगा हमारे बेसिक डैशबोर्ड से तो आई थिंक अच्छा ही बन सकता है, बट हमें एटलीस्ट पता होगा कि हम सामने वाले को एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं, मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया था उस टाइम बताने के लिए, लोड कर दिया सीधा, अभी ट्रांसफॉर्म करेंगे, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है, एंड मिस्टेक्स देखते हैं कहाँ कहाँ है, ब्लैंक्स तो है नहीं इसमें, नहीं है। ठीक लग रहा है ये भी,
स्टैब्लिश ईयर, फर्स्ट वाले में हमें मिस्टेक मिल गई। ये भी ठीक है। फाइन। फिजिबिलिटी ठीक है। फाइन। आइटम वेट में भी प्रॉब्लम है, जीरो होनी चाहिए थी ब्लैंक की बजाय, ठीक है ना, तो जीरो भी नहीं रखते हैं। एंड सेल्स कितनी है, सेल्स में भी सभी में कोई ब्लैंक नहीं है। ठीक है। ओके। देखो वैसे तो ऐसा नहीं होता है किसी का भी आइटम वेट जीरो हो, ठीक है। ये चीजें हम बाद में सोचेंगे कि इसको आगे कैसे कवर करते हैं। अभी हमें अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है और सोचना है कि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसके आंसर्स कैसे दे सकते हैं किसी को। तो अभी हम कुछ भी लेके चलेंगे, मतलब आइटम वेट जीरो लेकर चलते हैं, ठीक है, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। सो अभी हम क्या करेंगे, so we will go on transform phase, ट्रांसफॉर्म डेटा। अपन भी कर सकते हैं, ये नहीं कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले की लोड करने से पहले वही है, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन होता है, रिप्लेस वैल्यू, ये रिप्लेस वैल्यू, होम में रिप्लेस वैल्यू, धीरे धीरे हमें ये भी याद करना पड़ेगा ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले LF है जो, मैं उसको लो फैट लिख रही हूँ। हो गया। अब क्या प्रॉब्लम रहेगी, देखिए अभी लो फैट है। ओके, LF तो गया, और क्या रह रहा है, लो फैट को वो तो मैं कर दूंगी, वो तो इसको हम, एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, वेयर इट इज। देखो ऑप्शन से याद है, धीरे धीरे हमें ये भी याद करना होगा कि ये ऑप्शन है क्या, कहाँ है, ऐसे ढूंढना ना पड़े हमें। वेट, ओके, फर्स्ट थिंग हम करते हैं कि दोबारा रिप्लेस वैल्यू करते हैं, ठीक है। और हमारा क्या था, रेगुलर था आई थिंक, REG। ये भी चेंज हो गया। और ट्रांसफॉर्म में मिला मुझे फॉर्मेट, फॉर्मेट में कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो लो में था हाई में कन्वर्ट, वो वापस इसका फर्स्ट लेटर कैप्स होगा। अभी भी ये क्यों शो कर रहा है, रिंग, ये क्या हो गया, वेट, रिप्लेस वैल्यू वाला मेरा सही नहीं हुआ है, वेट, यहाँ तक ठीक था मेरा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया लो फैट को उसमें रेगुलर, ओके, REG कैप्स में नहीं था,
सो सबसे पहले मैं फॉर्मेट चेंज कर रही हूँ। फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट में क्या था, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, ये मेरा हो गया। एंड रिप्लेस में ठीक हुआ, ओके। सो मैं आई होम पे, यहाँ पे है रिप्लेस का, दोबारा करके देखते हैं। रेगुलर को मैंने कर दिया रेगुलर, ओके कर दिया, ये ठीक हो गया। ये क्यों हो रहा है, वाई? Why it is looks like this? Wait, अभी ये प्रॉब्लम हो ही गई है तो ठीक कर लेते हैं। ठीक होगा, वो जो भी देख लेना, जो भी तुम्हारे साथ हो उस हिसाब से चेंजेस कर लेना। उसके बाद मेरी एक प्रॉब्लम आ रही थी आइटम वेट पे। अभी हम नहीं सोचते हैं कि आइटम वेट में क्या फिल करना, अभी एक बार के लिए हम 0 ही फिल करेंगे, ठीक है। सो हम आए आइटम वेट पे, और एक ऑप्शन था चूज कॉलम में, गो टू कॉलम, ये दिखा रही हूँ कि कैसे जा सकते हैं सीधा आइटम। वैसे तो मैं पास थी इससे नेक्स्ट कॉलम में, तो मैंने सिलेक्ट किया और मैं उस पर पहुंच गई, ठीक है। सो आइटम वेट में नहीं था, आइटम वेट में 0 थे ना, हाँ आइटम वेट में नल वैल्यूज थी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, रिप्लेस वैल्यूज कर दूंगी। रिप्लेस वैल्यू, एक बार जहां भी नल है वहां पे रिप्लेस क्या कर दो, इंटीजर कॉलम है तो 0 कर दिया, 0 हो गया, मेरी रिप्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी तक हमें जो जो प्रॉब्लम्स दिख रही थी हमारे डेटा में, हमने वो ठीक कर ली। ठीक है, सेकेंड, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो ही चुकी है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज। तो ये क्लोज हो गया और अब हम आ गए अपने डेटा पे, ठीक है। वेट, मैंने आई थिंक वहाँ पे जो कट कर दिया था उसकी वजह से ही हो गया, वेट। जब हम स्टार्टिंग में करेंगे, खुद से माइंड से करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, 0 दिखा रहा है ये, वाई सारी 0, वाई ओनली शोइंग नल वैल्यूज। हमने किया तो था, बट आई डोंट नो व्हाई ऐसा दिखा रहा है। बट हम इसे दोबारा ठीक कर देंगे, आइटम वेट वाले को, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस हो गई, हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, रिप्लेस वैल्यू किया, और जहां भी नल था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 0 से, दोबारा कर दिया एक बार, देखें क्या हुआ। शायद मैंने यहाँ से गलत कर दिया था, मिस्टेक। सो मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया,
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, मेरा डेटा यहाँ आ गया है। ठीक है, अब मेरे जो क्वेश्चन थे ना, अब मुझे उनके आंसर्स बनाने हैं। दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार हम रफली डैशबोर्ड बनाएंगे जैसे हम बिगनर बनाते आए हैं, बस हमें इनसाइट्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल सेल। मेरी टोटल सेल क्या होगी? सेल्स यानी कि एक ही आउटपुट मिल रही है, टोटल सेल, तो उसके लिए कार्ड चलेगा। ठीक है, तो मेरी टोटल सेल डाल दी मैंने इसमें। ये मेरे मुझे मिल गई मेरी टोटल सेल। अभी मैं फॉर्मेटिंग वगैरह किसी पे अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ। पहले हम कोशिश करेंगे हमें ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो कि ये करना क्या होता है। ठीक है, और फिर अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। कार्ड्स वाले मैंने क्वेश्चंस अलग ही बना लिए थे, है ना। सो लेकिन नंबर ऑफ टोटल आइटम है कितनी, चाहे अभी हमें नीड है या नहीं, पर जो हमारे माइंड ने हमें कहा हमने वो ऑप्शंस चुने हैं। तो ठीक है, टोटल आइटम्स, तो मैंने आइटम सेलेक्ट किया और इसका काउंट कर लेंगे ना, काउंट। जिसने काउंट लेते हैं ना, डिफरेंट कितनी आइटम्स, डिफरेंट 16 आइटम्स है हमारे पास। ये क्या कर रहा था, हर रो का काउंट कर रहा था, पर ये क्या है, डिस्टिंक्ट जो यूनिक वाली हैं, डिस्टिंक्ट, वो काउंट करता है। 16 आइटम है हमारे पास। ठीक है, सो और क्या कार्ड हो सकता है? सो सेल्स बाय आइटम, आइटम की सेल्स क्या होगी? ओके, वो तो इस कार्ड में नहीं है ना। एक और कार्ड लेके देखते हैं। नहीं, अब हम करते हैं एवरेज रेटिंग। इन्हें हम ठीक करना सीखेंगे कैसे करना है। एवरेज रेटिंग, तो मेरी रेटिंग मैंने सेलेक्ट कर ली और ये क्लिक किया रेटिंग पे, सम ऑफ रेटिंग निकला, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी एवरेज आए रेटिंग। एवरेज रेटिंग आ गई। ठीक है, ये हो गए मेरे, एक सेकेंड, हमने यहाँ तक बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तीन हमने कवर कर लिए। सेल्स बाय आइटम, ये अब कार्ड में तो नहीं आएगा, राइट। सो इससे हम देखते हैं। उसके बाद है विच आउटलेट टाइप परफॉर्म बेटर, मतलब क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, हमने चीज बनाई थी, हमने वहां पे जानने की कोशिश की थी। वेट अ सेकंड, हमारे नोट्स में हम चेक करते हैं कि कौन सी चीज के लिए कौन सा चार्ट बनता था। लाइक कंपैरिजन चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट में बार चार्ट, कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड, इनमें से कुछ भी बना सकते हैं। तो हम आते हैं अपने पे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अपने नोट्स में से चीजें समझें कि क्या चीज कैसे है, rather देन किसी का कॉपी पेस्ट करने से। सो मुझे पर्सनली क्लस्टर कॉलम चार्ट समझ में ज्यादा मजे से आते हैं, तो एक बार यही ले लेते हैं हम। ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, सो नीचे ही रखते हैं इसको एक बार। ठीक है, ये रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि मुझे चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे चाहिए था, क्या चाहिए था कि आउटलेट टाइप परफॉर्मेंस, विच आउटलेट टाइप परफॉर्म बेटर। ठीक है, विच आउटलेट टाइप परफॉर्म बेटर, तो कैसे पता चलेगा आउटलेट? तो पहले मैं आउटलेट टाइप डाल देती हूँ। आउटलेट टाइप, सेल्स से पता चलेगा ना। हाँ, ठीक है, अब पता चल रहा है मुझे। सुपर मार्केट टाइप सबसे ज्यादा सेल कर रहा है। ठीक है, उसको इतना बड़ा बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और ये हो गया मेरा। उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार हम पहले बनाते चलते हैं कि क्या क्या चाहिए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या चीज कैसे। उसके बाद है आइटम टाइप के हिसाब से कौन जीत रहा है, मतलब वही हुआ ना सेल, हर चीज घूम के जा तो सेल के साथ ही रही है।
तो मैंने एक बार चार्ट ले लिया। सो चलो इसको यहीं रहने देते हैं, अच्छी बात है यहीं आ रहा तो। बहुत जगह है यार। ठीक है, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मुझे पता चल जाए कि, एक मिनट देखते हैं, टीयर 1 टीयर 2 मैंने लिख तो दिया, टीयर 1 टीयर 2 था किसमें, आउटलेट लोकेशन टाइप में। आउटलेट लोकेशन टाइप मैंने इसमें लोकेशन टाइप डाल दिया और फिर सेल्स डाल दी। हमेशा ना वाई एक्सिस पे ना न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकली मतलब जो टारगेट वेरिएबल है, जो मेन चीज है, जैसे मेरा सेल्स टारगेट है, इसीलिए वो हमेशा वाई एक्सिस पे, हर किसी के साथ सेल्स ही जा रही है। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सो ये हो गया मेरा। एक तो नहीं, सम बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो उसको तो बाद में ठीक करेंगे। सो एक मेरा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी वर्सेस सेल, किसकी कितनी विजिबिलिटी है, क्या विजिबिलिटी सेल पे इफेक्ट डाल रही है। हाँ, जैसे तो जो चीज ज्यादा दिख रही है तो वो आई थिंक डालती है, जरूरत की चीज ना भी हो तो भी। अगर मैं मॉल में जाती हूँ, चटर पटर खाने पीने का सामान आगे रखा है तो मैं बाय कर लेती हूँ, अगर मुझे दिखेगा नहीं तो क्यों बाय करूंगी, याद ही नहीं रहता, राइट। सो देखते हैं कि क्या कर रहा है। ओके, कोशिश करते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, विजिबिलिटी का इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा और चार्ट बन सकता है इसमें। वेट, हम करते हैं एक स्कैटर चार्ट भी लेके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा हमारे में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट लेंगे तो हमें समझने भी आ जाएगा कि ये चीज कैसे कर रही है। ठीक है, स्कैटर चार्ट में मैं क्या डालूंगी, तो बहुत जगह है इसमें। ठीक है, ये हो गया, दो चार्ट चिपका दिए। तो स्कैटर प्लॉट एक था मेरा विजिबिलिटी और सेल्स, तो मैंने एक में डाला जिसकी जितनी विजिबिलिटी है, क्या विजिबिलिटी सेल्स के साथ कोई लिंक है? मैं एक काम करती हूँ, पहले आइटम वेट देखती हूँ, क्या आइटम वेट का मैंने स्कैटर प्लॉट बना रही हूँ मैं कैसे, आइटम विजिबिलिटी और सेल्स का। तो मैंने यहाँ डाल दिया आइटम विजिबिलिटी और मैंने सेल्स डाल दी।
ये सम हो रहे हैं, सम से सिर्फ एक डॉट दिखता है तो मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने इसको समराइज नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मुझे क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो उसने मुझे दिखाया कि कोई रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, कि वैसे ही कुछ भी हो सकता है। मतलब विजिबिलिटी है, थोड़ी बहुत सेल बढ़ाता है, बट नॉट इन दैट। देखो, अगर कोई चीज विजिबल हो रही है तो थोड़ा बहुत सेल्स तो बढ़ती है, लाइक चॉकलेट्स वगैरह आगे पड़ी हैं तो सेल्स हो रही है, बट उस बड़ा इम्पेक्ट नहीं डाल रही। ये नहीं है कि आगे कोई बड़ी चीज पड़े वो डेफिनेटली खरीदी ही जाएगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, सेल इंक्रीज होती है, बट कोई डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो ये होगा मेरा विजिबिलिटी का। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, काम करते हैं, बराबर कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, सो विजिबिलिटी वाला हो गया। अब देखते हैं आइटम का वेट का कोई डिफरेंस पड़ता है। अगर आइटम का वेट का सेल्स पे कोई इफेक्ट है। स्कैटर प्लॉट हम कम यूज कर रहे हैं, अभी तक मैंने बहुत कम यूज किया है, सो थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे इससे भी, क्योंकि जीरो आइटम की बहुत सारा वेट है हमारे में, तो एज सच कोई आइटम वेट का भी नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अगर मान लो आगे बेड रखा है, कोई भारी चीज पड़ी है थोड़ी, उसको जरूरत नहीं भी है तब भी ले जाए, उसको दे। वो चीज नहीं है, वंस इन अ वाइल हो सकता है कि उसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी तो उसने खरीद लिया, बट हमेशा ऐसे नहीं होता है। सो कोई ऐसा एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा चार्ट था हमने जो बनाया, ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट क्या है कि, क्या कहता है ट्रेंड चार्ट में, हाउ सेल्स चेंज ओवर टाइम। सेल्स चेंज कैसे हो रही है टाइम के हिसाब से। पर हमने बहुत सारे ज्यादा चार्ट बन गए हैं, इतने चार्ट्स होने नहीं चाहिए, बट ठीक है अभी हम सीख रहे हैं तो बना रहे हैं। सारे चार्ट ऐसे नहीं होते हैं, देखते हैं बाद में कौन चेंजेस करके। एक बार हम सभी चार्ट बना रहे हैं। सो हाउ सेल्स, इसके लिए तो अगर ट्रेंड है, टाइम डाल रहे हैं हम कहीं पे, तो उसमें दो ही चार्ट बनते हैं, एरिया चार्ट या लाइन चार्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, ट्रेंड में लाइन चार्ट या एरिया चार्ट ही बनता है। तो मैंने ट्रेंड दिखाना है तो मैं लाइन चार्ट ले लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है लाइन चार्ट। तो मुझे क्या चाहिए, ईयर, आउटलेट एस्टैब्लिश ईयर डाल दिया मैंने, और सेल्स डाल दी। ठीक है, सो ईयर के हिसाब से सेल्स बता रहा है, 11 में सेल्स कितनी थी, 12 में कितनी है, कैसे फॉलो कर रहा है, जैसे 12 से लेके 18 तक लगभग कंसिस्टेंट ही रहा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ गई, उसके बाद फिर घट गई, फिर कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो ये बता रहा है कि एस्टैब्लिश ईयर के हिसाब से सेल क्या चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या है, अब हम इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं। विच प्रोडक्ट हैव हाईएस्ट सेल, लो विजिबिलिटी, एंड डज फैट कंटेंट इफेक्ट। ऑलमोस्ट हम सब बना चुके हैं यही। सो अब हम थोड़ा चेंजेस करने की कोशिश करते हैं कि लाइक मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कह रही थी, मुझे चाहिए किसकी विजिबिलिटी सबसे कम है। तो मैंने एक बार एक कॉलम चार्ट लिया, एक बार हम लेते हैं यहाँ,
ठीक है, तो मुझे चाहिए कि आइटम, किस आइटम टाइप की कितनी विजिबिलिटी है। मुझे आइटम टाइप की विजिबिलिटी दिख गई, कौन सा आइटम टाइप कितना विजिबल हो रहा है। ठीक है, और मैं इसकी जगह ये ले लेती हूँ सो दैट मुझे थोड़ा समझ में आ जाए। ये मुझे पता चल रहा है टीयर वन की कितना कंट्रीब्यूशन है सेल्स में, टीयर वन का कितना कंट्रीब्यूशन है टीयर टू का। ठीक है, सो ये हो गया सम ऑफ आइटम विजिबिलिटी। तो इसमें ये भी सही है, ये सही है। अब मुझे पता चल रहा है कि कौन सा आइटम फ्रूट्स एंड वेजेस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके बाद स्नैक्स, सी फूड सब दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है इसके लिए। सो ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं सिर्फ एक चीज और कर रही हूँ, आइटम विजिबिलिटी एंड सेल्स। ठीक है, और अब मुझे ना सिर्फ मुझे विजिबिलिटी दिख गई और फैट, हाउ फैट कंटेंट इफेक्ट सेल्स, ये भी देखना है मुझे। ठीक है, आइटम वेट वाला हटा रही हूँ एक बार, मैं इसकी जगह मैं जानना चाहती हूँ आइटम फैट कंटेंट का सेल्स पे क्या इफेक्ट है। दो ही आइटम टाइप है तो मैंने ये बना दिया, ये ऊपर होना चाहिए नीचे ताकि दोनों एक साइड हो जाए। मैं इससे ऊपर कर रही हूँ सो दैट सिमिलर सा लगे थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि सारे सिमिलर से चार्ट अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। अब मुझे सिर्फ इसमें फिल्टर लगाने हैं थोड़े से। ठीक है, अभी मैंने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेट नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे जब हम थोड़ा सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि करनी कैसे होती है। ठीक है, बट अभी हम यही सीखेंगे कि हम ये चीजें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। अब मुझे सिर्फ फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस टाइप के फिल्टर लगा सकते हैं। आइटम टाइप के हिसाब से अलग फिल्टर लगाना चाहेंगे एक। मैंने एक स्लाइसर ले लिया, मैंने एक स्लाइसर लिया
अभी जस्ट बिगनिंग है तो बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं बन पा रही हैं, बट देखते हैं। स्लाइसर में मैंने आइटम टाइप डाल दिया। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक आइटम टाइप के हिसाब से देखना है, मैं नहीं चाहती ऐसे। मैं चाहती हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। मैं कुछ भी आइटम टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे देखना है सब कुछ ब्रेड्स का, उसने मुझे दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स के देखने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं देख सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसमें सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी आए, ठीक है। और सिलेक्ट ऑल आ गया ऑप्शन, और मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है। सो अब मुझे चाहिए कि आइटम पैड कंटेंट आ गया। अब मैं देख सकती हूँ, मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ किस किस चीज़ के चाहिए हो सकते हैं। आइटम टाइप के हुए, इनमें से लोग आउटलेट लोकेशन, नहीं, आउटलेट लोकेशन देखें। आउटलेट लोकेशन टाइप ये ज़रूरी है, ठीक है। और आउटलेट साइज भी ज़रूरी है। आउटलेट ये तीनों ही सही ठीक लग रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। लोकेशन, साइज एंड आउटलेट टाइप, आई थिंक इसमें ये होना चाहिए आउटलेट टाइप। दैट इज लुक्स ग्रेट, दैट लुक्स ग्रेट, ठीक है। कौन सा आउटलेट टाइप है मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा नीचे गई, मैंने एक और, ये व्हाट इज दिस, भाई मुझसे, ठीक है। मैंने ये तो कर लिया। अब मुझे एक और ये चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए आउटलेट साइज, आउटलेट टाइप, आउटलेट साइज एंड देन आउटलेट लोकेशन। आ रही हूँ मैं चाहती हूँ वर्टिकली दिखाई दे तीनों, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन मैंने अब कैंसिल कर दिया। अब मैं चाहती हूँ वर्टिकली दिखाई दे। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। और ये होगा मेरा डैशबोर्ड। प्रिपेयर, वेट अ सेकेंड, मेरी गई लैपटॉप की चार्जिंग। Okay, this is our dashboard, and now we need to do just, can we change this formatting or something? Views. Okay, just we need to change the theme. Just try it.
Okay, so how what about this one? No, it's too much simple, right? But if I use the black background in front of this, no, I like gray one and not. Hmm. Wait, hmm, अभी हमारी कलर थीम भी इतनी यूज टू नहीं हुए हम उसके साथ, तो हम चलेंगे ग्रे और ब्लैंकेट का बनाने की कोशिश करते हैं। ब्लैंकेट का डेटा था, बट हम ऊपर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं ना। ओके, मेरे पास स्पेस है, मैं उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, दिस वन। और आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। ओके, okay, I'll going to add a text box. Okay, okay, blanket sales performance. ठीक है, okay, okay. Now I'm going to journal effect background. Blanket का I think. Why the color is going this way? Canvas background और why not other color? Wait. सभी कलर ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमने वो लगा दिया है। एक मिनट करते हैं, थीम हटाते हैं पहले। हम्म, थीम क्रिएट करने की कोशिश करें। हम्म, छोरी हो रहा है यार। मेरे पास बैकग्राउंड पड़ा है।
क्योंकि मेरी थीम है वो फिट नहीं हो रहा। फिट, वेट, दोबारा ट्राई करते हैं। बैकग्राउंड कलर, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, देखो कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसके कलर्स जो भी गैप है वो बहुत बुरा लग रहा है। अब हमें हमारे सारा दिख रहा है कि हमने क्या गड़बड़ करी है उसमें अलाइनमेंट्स में। तो थोड़ा सेट करते हैं इसे। ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट ठीक है। तो हम इनका ठीक है, ये होगा। अब मैं चाहती हूँ ना, ये सारे एक बार ब्लैक कलर करके देखते हैं इसके ऊपर। मैंने सिलेक्ट किया। नॉट लुकिंग गुड। इससे तो मेरा सिंपल ही सही लग रहा था। Every time at last I select black one. Okay, that's fine. So I'll change this is color. Just select this one and okay, that's it for this. That's fine. It's completely fine. I'll change its color if I had option, but I didn't find the option of that. Change this color. Mhm. Okay, so I don't like it because में क्या है, हमारे सारे white is वो अच्छे से दिख रहे हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं एक बार बैकग्राउंड रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, white ही लेके चलते हैं, ये ठीक लग रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं दिख रही है। दैट्स फाइन, एक बार के लिए हम यही रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें ये डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना हो हमारे टीम को या कुछ भी, तो हम कैसे करेंगे।
ठीक है. So let's plan it. Okay. First I need. Okay. जितना हमें डैशबोर्ड बनाना ज़रूरी है, बनाना आना ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये भी एक्सप्लेन कर पाएँ इसे. अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना है तो वो आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. So let's start it. Okay, if I will represent it in front of my team, how would I do it? Good morning, everyone. Today I'm going to make. Sorry. Good morning, everyone. Today I will be presenting a sales analysis dashboard that highlight key business insight across different outlets and product categories. The total sale the total sale amount would be 1.20. Amount is 1.20 m million and covers 16 items, item type with an average rating of 3.92, indicating overall stable performance. We can observe that the tier 3 location contribute the highest sales, suggesting strong demand in small cities. And additionally the low fat product dominate sales, reflecting a clear customer preference for healthier options. The sales trends show the peak around 2018 to 2019, followed by a relatively stable pattern in recent year. Among outlet type supermarket type 1 is a top performance, contributing the largest share of revenue. The relation between item visibility and sales appearance weak, indicating the visibility alone does not significantly drive sales. In terms of the product category, fruits and vegetables are the highest selling categories, while seafood contributing the least selling categories. The dashboard also includes filter for outlet type, outlet size, enable more flexible and detailed analysis in contribution of tier 3 market. Low fat product and essential goods emerge as a key drive for sale performance. Thank you. That's it for this video. On daily basis, practice will surely improve our skills. So make sure we will continue and be consistent with this practice. That's it. Thank you. Bye bye.